அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். கண்ணியத்துக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய எல்லாம் வல்ல அல்லாஹுவின் நல்லடியார்களே, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम बुजुर्गान मिल्लत और अज़ीज़ साथियों और नौजवान साथियों और यहाँ आए हुए तमाम लोगों को मैं खैर मक़दम कहते हुए अपनी बात को शुरू करता हूँ। நீண்ட தூர பயணங்களின் மூலமாக தங்களுடைய பணிகளை எல்லாம் விட்டுவிட்டு 2 நாட்களுக்காக தொலை தூரத்தில் இருந்து அல்லாஹுக்காக இங்கே இந்த கூடியிருக்கக்கூடிய உங்களை அனைவரையும் மனமாற நெஞ்சார வரவேற்கிறேன்। दूर दराज से अपने तमाम मसरूफियात को छोड़कर अल्लाह ताला के लिए यहाँ जो भी जमा हुए हैं उन तमाम लोगों को अल्लाह तबारक व ताला के तरफ से मैं खैर मक़दम यानी अल्लाह ताला की सलामती और उसी तरह अहलों व सहलों व मरहबा के ज़रिए आप लोगों का इस्तक़बाल करता हूँ। இங்கே எந்த விதமான பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகள் கிடையாது, இங்கே நகைச்சுவை பேச்சுக்கள் கிடையாது, இங்கே எந்த விதமான உறவுகளுக்காகவோ அல்லது வியாபாரத்திற்காகவோ அல்லது திருமணத்திற்காகவோ அல்லது உலக ஆதாயத்திற்காகவோ நாமெல்லாம் இங்கு ஒன்று கூடவில்லை। यहाँ कोई बेकार बात नहीं होगी और यहाँ कोई वक्त की ज़ियाकारी नहीं होगी और यहाँ कोई दूसरी दुनियावी मसरूफियात नहीं होगी और बेकार बातें, लघु बातें और तमाम दूसरे जो भी मसरूफियात, बेकार मसरूफियात हैं वो बातें यहाँ नहीं होगी। பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறுகிறார்கள், என் நிலை என்ன ஆகுமோ, என் நிலை என்ன ஆகுமோ, யா நஃப்சி யா நஃப்சி என்று கதறுகின்ற அந்த கியாமத்துடைய கொடிய வெயிலின் சூட்டிலே ஒவ்வொரு மனிதனும் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது சில பேர்கள் அல்லாஹுடைய அரிசின் நிழலில் இருப்பார்கள்। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोग परेशान होंगे, मेरी हालत क्या होगी, मेरी हालत क्या होगी, आज मुझसे क्या मामला किया जाएगा। और सूरज बिल्कुल करीब होगा और बिल्कुल ज़मीन सूरज से करीब होगी और तमाम लोग पसीने में शरापोर होंगे, पसीने में डूबे हुए होंगे। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला कुछ लोगों को एहसास देगा, अर्श के साये में जगह देगा। அவர்கள் யார் என்றால் இந்த உலகத்தில் அல்லாஹுக்காகவே கூடியவர்கள், அல்லாஹுக்காகவே பிரிந்து செல்பவர்கள்। उनमें से वो लोग भी हैं जो 7 लोगों में से दुनिया में अल्लाह ताला के लिए मोहब्बत करते हुए जमा हुए, अल्लाह ताला के खातिर मोहब्बत किए, अल्लाह ताला के खातिर जमा हुए, अल्लाह ताला की फिक्र, दीन की फिक्र लेकर और एक दूसरे से मोहब्बत के उसी लिए जमा हुए। கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, நாம் எல்லோரும் இங்கே அல்லாஹுக்காகவே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம்। मोहतरम हजरात, हम तमाम लोग अल्लाह के खातिर जमा हुए हैं। கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் நாம் சுன்னத்தை பின்பற்றுகிறோம்। मोहतरम हजरात, हर काम के लिए, हर चीज के लिए हमें सुन्नत को अपनाना होगा। எப்படி உறங்குவது, रिश्ता किस तरह हो, எப்படி பல்லு விளக்குவது, हम कैसे सोएं और कैसे எப்படி சாப்பிடுவது, खाने का तरीका क्या है और वजू का तरीका क्या है, सोने का तरीका क्या है, இப்படி எல்லா சுன்னத்துகளையும் நாம் பின்பற்றி வருகிறோம்। इन तमाम को सुन्नत के तरीके से हम पहचाने, सुन्नतों को अपनाएं। சமூக சேவை செய்வதற்கான சுன்னத்துக்கள் எது? खिदमत खल्क करने के लिए क्या क्या सुन्नतें हैं? கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, சமூக சேவை செய்யக்கூடிய சுன்னத்து முதலாக பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஸ்ஜிதில் வைத்து சேவை செய்தார்கள்। இன்ஷாஅல்லாஹ் मोहतरम हजरात, खिदमत खल्क का जो तसव्वुर है इस्लाम में, सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत खल्क को मस्जिद से शुरू किया।
அனைத்து சேவைகளையும் அல்லாஹ் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மஸ்ஜிதில் வைத்து முதலாக செய்து காட்டிய பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்தான் நம்முடைய மஸ்ஜித் சேவை குழுவின், நம்முடைய மஸ்ஜித் खिदमत கமிட்டியின், மஸ்ஜித் சர்வீஸ் கமிட்டியின் ஃபவுண்டராக ஆவார் இன்ஷாஅல்லாஹ். सबसे पहले इस खिदमत की बुनियाद रखने वाली शख्सियत, खिदमत खल्क को शुरू करने वाली शख्सियत, सारी दुनिया के लोगों की खिदमत खल्क की शुरू करने वाली शख्सियत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जिनके जरिए खिदमत खल्क का वजूद मस्जिद से शुरू हुआ. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் தங்களுடைய அன்பையும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய கருணையின் சுன்னத்துகள் இன்று விடுபட்டு போய்விட்டது. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிற மக்களின் மீது காட்டிய அன்பு என்ற சுன்னத்து இன்று விடுபட்டு போய்விட்டது. பிற நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பிற மக்களின் மீது காட்டிய இரக்கம் என்ற சுன்னத்து இன்று விடுபட்டு கிடக்கிறது. जाहिलियत के जमाने में लोग मोहब्बत खो दिए थे और लोग बिल्कुल एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे और लोग एक दूसरे की खिदमत से दूर हो गए थे. सबसे पहले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत को जगाया और एक दूसरे से मोहब्बत पैदा की. और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए शुरू हुई और मस्जिद के जरिए शुरू हुई. और एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे का ताउन और एक दूसरे से मिलाप, यही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही शुरू हुआ. குர்ஆனிலும் ஹதீஸிலும் ஆய்வு செய்து உலமாக்கள் கூறுகிறார்கள், உண்மையில் பாவத்தில் பெரும் பாவம், அல்லாஹ்வுக்கு கோபத்தை உண்டாக்கக்கூடிய பாவம் பிறர் மீது இரக்கம் காட்டாமல் இருப்பது, பிறர் மீது கருணை காட்டாமல் இருப்பது. कुरान और सुन्नत के जरिए उलमा ने सबूत दिया है, उलमा ने दलील पेश किया है कि अल्लाह ताला को गुस्सा दिलाने वाली चीज लोगों से दूर और लोगों की खिदमत से दूर और लोगों की जरूरियात को पूरा ना करना, ये सबसे अहम, यानी लोगों के हुकूक को अदा ना करना, ये सबसे बड़ा जुल्म है. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதிரிகளை எப்படி கையாண்டார்கள்? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எதிரிகளை எப்படி கையாண்டார்கள் என்ற சுன்னத்து இன்று விடுபட்டிருக்கிறது. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ किस तरह मामला किया, ये सुन्नत भी हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के साथ किस तरह बेहतरीन सुलूक किया. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் முகத்தை கூட பார்க்க கூடாது என்று ஊரை ஒட்டியே வெளியேறிய ஒரு பாட்டியின் மூட்டையை பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் நேரிலே வந்து அந்த மூட்டையை தாங்கள் வாங்கி கொண்டு ஹிதுமத் செய்து எதிரிக்கும் உதவினார்கள், எதிரின் மீதும் அன்பு காட்டினார்கள். नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों से साथ मोहब्बत से सुलूक किया, यहाँ तक कि एक ऐसी बूढ़ी औरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना भी, उनके चेहरे को देखना भी पसंद नहीं करती थी, ऐसे बूढ़ी औरत के साथ जो सुलूक किया, ऐसे बूढ़ी औरत की खिदमत की और उनके जो बोझ संभाला और उनका बोझ उठाया और उनकी खिदमत की, इसके जरिए उनके दिल जीत लिए. தன் மீது குப்பையை கொட்டிக்கொண்டே இருந்த தினமும் ஒரு பெண்ணை பார்த்து அவர்கள் நோயுற்றிருக்கிறார்கள் என்பதை கேள்விப்பட்டு அங்கே விசாரிக்க சென்று, என்னமா இன்னைக்கு கொட்டலியே, மாமூலா கொட்டுற ஆளு கொட்டலியே என சொல்லி விசாரிக்க செல்கிறார் என்றால், அவர்கள் தன்னை வெறுத்த, தன் மீது கோபம் கொண்ட, தன்னை எதிர்க்கக்கூடியவர்களின் மீது எந்த அளவு அன்பு காட்டியிருக்கிறார்கள், எந்த அளவு உதவி இருக்கிறார்கள். इससे भी हम वाज़ेह कर सकते हैं कि एक औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में रुकावट बनी थी, रोजाना कूड़ा करकट डालती थी, आपके घरों में घर के सामने कांटे बिछाती थी और मालूम हुआ कि वो बीमार हो गई, तो ऐसे औरत के साथ, ऐसे औरत के पास गए और ऐसी बूढ़ी औरत की खिदमत की और बीमार पुरसी की. इसके जरिए उस औरत के दिल जीत लिए. हमें इससे मालूम होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मनों के साथ किस तरह मोहब्बत का सुलूक किया. இளைஞர்கள் கூட்டத்துக்கு மத்தியில ஒரு நாள் நான் கேள்வி கேட்டேன், உங்க வீட்டு முன்னாடி குப்பையை கொட்டினா நீங்க என்னப்பா செய்வீங்கன்னு கேட்டேன். ஒருத்தன் சொன்னா கிரிக்கெட்ல பேட் அடிச்சா பால் அவங்க வீட்டுல போய் உடைக்காம விட மாட்டேங்கிறான். இன்னொருத்தனை கேட்டா, मैं नौजवानों से सवाल करता हूं, अगर आपके घर के सामने कोई कूड़ा करकट डाले तो तुम्हें क्या, उसका क्या जवाब दोगे? तो तुम में से कोई बस बोलेंगे कि मैं क्रिकेट बैट के जरिए ऐसे गेंद फेंकूंगा कि वो उनके घर के अंदर जाकर गिरेगा और उनके घर में नुकसान पैदा करेगा.
இன்னொருத்தர் சொல்றாரு முனிசிபாலிட்டிக்கு மாசம் மாசம் 1000 ரூபாய் கொடுத்து அந்த வேன் குப்பையை பூரா கொண்டு போய் அவ வீட்டு முன்னாடி கொட்ட சொல்லிடுவேன், என் வீட்டு முன்னாடி குப்பையை கொட்டினா விடுவனா அப்படிங்கிறான். और एक बोलेगा मैं हुकूमत के लोगों से कहकर, जो मुंसिफाट का लोग है, कहूंगा कि उसको मैं तुमको जितना पैसा 1000 रुपए देता हूं, जाओ उस घर के पास जैसा उसने हमें मेरे घर के पास फेंका है उस घर के पास और भी ज्यादा से ज्यादा कूड़ा करकट फेंको, उस घर के सामने कूड़ा करकट का ढेर जमा दो. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் பழி வாங்கக்கூடிய மனப்போக்கை வெறுத்தார்கள். அவங்க नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदला लेने की नफ्सियात को दूर किया और किसी भी दुश्मन से बदला नहीं ली. ஒரு முறை பாங்கு ஒலி சொல்லப்பட்டது, ஒரு முறை பாங்கு ஒலி சொல்லப்பட்டது, அதான் एक बार अजान दी गई, एक मर्तबा अजान दी गई. அதை முஸ்லிம் அல்லாத சில இளைஞர்கள் ஒருவர் அதை கேலி செய்து மிமிக்ரி செய்தார். அதை काफिरों में से एक आदमी ने उसका मजाक उड़ाया, अजान का मजाक उड़ाया. அவர் சில நண்பர்களோடு சேர்ந்து கேலி செய்து கொண்டிருந்தார். वो अपने साथियों के साथ मिलकर, अपने दोस्तों के साथ मिलकर अजान का मजाक उड़ाया. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சில சஹாபாக்களை அனுப்பி அவரை பிடித்து வர சொன்னார்கள். சஹாபாக்கள் சில சஹாபாக்களை அனுப்பி அந்த பாங்கு ஒலியை கேலி செய்பவரை, மிமிக்ரி செய்பவரை பிடித்து வர சொன்னார்கள். नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को भेजा कि सहाबा रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन को, कुछ बात सहाबा को कि उन लोगों को बुला कर ले आए. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அவர் நடுங்கிக் கொண்டே வரார். அவரு नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बुलाकर लाए उन लोगों ने. நடுங்கிக்கிட்டே வரார், பயந்துகிட்டே வரார். அந்த பையன் जिस आदमी ने मजाक किया वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास डरे डरे आया, घबरा कर आया. பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய அன்பை பாருங்கள், அவர்களுடைய தந்திரத்தை பாருங்கள், அவர்களிடம் இருந்த மந்திரம், நற்குணம், அன்பு. அந்த பையனை அழைத்து தோளிலே கையை போட்டு, தம்பி நீயா பாங்கு சொன்னாய், உன் குரல் மிக அழகாக இருக்கிறதே, நீ மட்டும் இஸ்லாத்தில் இணைந்து விட்டால் உன்னையே பாங்குக்கு நான் பொறுப்பாக்கி விடுவேன் என சொன்னவுடன் அவர் கண்ணீர் மல்க பெருமானாருடைய கையை பற்றி பிடிக்கிறார்கள். नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलूक देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस आदमी के पास कैसा मामला किए, कैसा पेश आए, उस आदमी उस बच्चे के साथ मोहब्बत के साथ पेश आए और कहा कि अरे भाई क्या तुमने अजान दी, ये अजान इतनी बेहतरीन आवाज थी, आपकी आवाज कितनी बेहतरीन थी, बहुत अच्छा है. इस तरह उसकी तारीफ की और उसके साथ बेहतरीन नरमी का मामला किया और ऐसी बात की कि वो आदमी कहा कि उसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चिमट लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके दिल को अच्छे अखलाक से और नरम लहजे से और हमदर्दी से जीत ली. இந்த மாநாட்டின் நோக்கம் இரண்டு விஷயங்களை ஒழித்து கட்டுவது. इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद यही है, दो चीजों को खत्म करना है. ஒன்னு குறை கூறுதல், एक दूसरे का लघु बात, बेकार और गीबत करना, और இன்னொன்று புறங்கூறுதல், பேக் பைட்டிங். और इसमें चुगली खाना और गीबत करना, इन दो चीजों को खत्म करना असल मकसद है इस प्रोग्राम का. காலையிலிருந்து கஷ்டப்பட்டு ஆக்கி வச்ச பிரியாணியை பத்தி பேசுங்க. காலையிலிருந்து கஷ்டப்பட்டு சமைச்சு வைக்கக்கூடிய பிரியாணியை பத்தி பேசுங்க, நல்லா இருக்குதுன்னு சொல்லி. सुबह से मेहनत के साथ जो भी पकवान बिरयानी तैयार है उसके बारे में आप बात कीजिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. அதுல ஒரு சின்ன கல்லு கடந்தா அதை தூக்கி போட்டுருங்க, அதை பத்தி பேசாதீங்க. இன்ஷாஅல்லாஹ் उसमें अगर कोई पत्थर ही, छोटा कंकर ही हो तो उसको फेंक दीजिए. எத்தனையோ பேர் இந்த சமுதாயத்துக்கு நல்ல காரியங்கள் பண்ண வந்தவங்களை அவங்களுடைய குறை கூறி புறம்பேசி அவர்களை விரட்டி அடித்திருக்கிறோம். इस उम्मत की फिक्र करते हुए बहुत से लोग अल्लाह के फजल व करम से आए हैं और उनके बारे में चुगली खाना, गीबत करना, उनको बुरा भला कहना, इससे हम दूर हो जाएं. இரண்டு விஷயங்களை நாம் உலகம் முழுவதும் பரப்புவதற்காக இந்த மாநாடு நடத்துகிறோம். இன்ஷாஅல்லாஹ் इस कॉन्फ्रेंस का असल मकसद दो बातों को सारी दुनिया तक फैलाना है. ஒன்னு பொறுமை, एक सब्र ரெண்டு கருணை. और दूसरा रहम. 90வது சூரா அல் பலதில் அல்லாஹு தாலா கூறா, நாளைய வலப்புறத்தார் வெற்றியாளர்கள் இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்த காலத்தில் ஒருவருக்கொருவர் பொறுமையை கொண்டும் கருணையை கொண்டும் உபதேசம் செய்வார்கள். इन दो बातों का तज़किरा
अल्लाह ताला सूरह बलद सूरा नंबर 90 में करता है कि वतवासो बिस्सब्री वतवासो बिलमरहमा, यही जन्नत को ले जाने वाली चीज, अक़बा जो घाटी को पार करने वाली चीज है वो ये है कि सब्र करना और एक दूसरे के साथ रहम करना, हमदर्दी करना। इसी के बारे में अल्लाह ताला ने इन दो बातों के बारे में सूरह बलद में बताया है। ஒரு அண்ணன் தம்பி மேல கேஸ் போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னா நாம என்ன சொல்லணும்? एक भाई अपने छोटे भाई पर केस करना चाहता है तो हम उसको क्या कहेंगे? நம்முடைய வார்த்தைகள் என்னவா இருக்கணும்? हमारी बात क्या होगी? பொறுமையா இருங்க இன்ஷா அல்லாஹ். सबर करो, அவசரப்படாத. सबर करो। பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க கூட சண்டை வந்தா நாம என்ன சொல்லணும்? பொறுமையா இருங்க. अगर कोई बाजू பொறுமை பொறுமை. அண்ட் neighbor fight with neighbors. बाजू घर वाला अगर कुछ परेशानी करे तो उसको भी कहेंगे कि सबर करो। நமக்கு ஒருத்தர் துரோகம் பண்ணிட்டாங்கன்னா பொறுமையா இருப்போம். हमें कोई धोखा दे दे उससे कहेंगे तुम सबर करो। இந்த சபருங்கிற வார்த்தை உலகம் முழுவதும் இந்த நாளிலிருந்து பரவட்டும் இன்ஷா அல்லாஹ். सबर का लफ्ज सारी दुनिया में हमें फैलाना है। அண்ணனா இருந்தாலும் தம்பியா இருந்தாலும் விடாதேங்கிற வார்த்தையை விட்டுருவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். चाहे बड़ा भाई हो छोटे भाई हो कोई हो, हम விடாத ஒரு கை பாரு அந்த வார்த்தை வேணாம் இன்ஷா அல்லாஹ். हम उसको सबर की तलकीन करेंगे। கருணை காட்டு என்ற வார்த்தையை பேசுவோம் இன்ஷா அல்லாஹ். हम एक दूसरे से हमदर्दी, रहम और इसके बारे में उससे कहेंगे। கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, எவ்வளவு கருணை காட்ட வேண்டி இருக்குது, எவ்வளவு கருணை அன்பு செலுத்த வேண்டி இருக்கிறது, இறக்கப்பட வேண்டி இருக்குது. ரஹம் इस्लाम हमें किस तरह रहम करने के लिए कहता है। ஒரு ஊர்ல போய் நாங்க சர்வே பண்றோம். ஒரு பெண், வீட்டை விட்டு வெளியே வராத பெண், एक औरत जो घर से बाहर नहीं निकल रही है, எந்த ஒரு ஆண்களுடைய பார்வையிலும் தன்னை காட்டாத ஒரு பெண், और गैर मर्द के सामने जो नहीं आ रही है, மக்தப் ஓதிய பெண், और पर्दे में मक्तब में पढ़ी हुई औरत, और முழுமையாக மார்க்கத்தை பின்பற்றக்கூடிய ஒரு பெண், मदरसे में मक्तब में पढ़कर इस्लाम पर चलने वाली, मुकम्मल तौर पर इस्लाम के पाबंद होने वाली औरत, இன்று அந்த பெண் आज वो औरत, இஸ்லாம் அல்லாத குடும்பத்தில் தாலியை பட்டி கொண்டு பொட்ட வச்சு வாழ்ந்துட்டு இருக்குது இன்ஷா அல்லாஹ். आज वो औरत गैर मुस्लिम के साथ मंदिरों में जाकर शादी कर लेती है। காரணம் என்ன தெரியுமா? मकसद क्या, वजह क्या है, इसकी वजह क्या है? காதல் கிடையாது, லவ் கிடையாது, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत की वजह से नहीं। அவருடைய தகப்பனார் ஒரு கந்து வட்டிக்காரன்ட்ட கொஞ்சம் கடன் வாங்கி இருக்காரு. उनके बाप ने एक आदमी के पास जो सूद लेने वाला है उसके पास कर्ज लिए। அந்த கடனை அவர்னால திருப்பி செலுத்த முடியல. कर्ज को देने नहीं हुआ, उनसे देने की ताकत नहीं। அந்த கடன் கொடுத்தவர் வீட்டு முன்னாடி நின்று பயங்கரமா சத்தம் போட்டு திட்டுறாரு. कर्ज वापस देने की ताकत नहीं, इसलिए वो जिसको कर्ज जिससे लिए वो आदमी उस घर के पास, उस आदमी के पास बुरा भला कहता है, बुरे अल्फाज से पुकारता है, गाली देता है। உச்ச கட்டத்துல அவன் கேக்குறான், ஒன்னு காசை குடுலினா உன் பொண்ணை கட்டி கொடு. वो आखिरी हद ये होती है, या तो मेरा पैसा दो या तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी कराओ। அவமானம் தாங்க முடியாமல் அவர் சொல்றாரு, பெண்ணவே கட்டிக்க. और उसने इसकी इज्जत यहां तक के वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि वो अपनी बेटी ही को देने के तैयार हो जाता है, अपनी बेटी ही को लेकर जाओ। எனவே அந்த வகையில் அந்த பெண் மனம் முடித்து கொடுக்கப்படுகிறாள். तो बहरहाल आखिरकार ये होता है कि उसी के साथ शादी करा देता है। நான் கேட்டேன், அந்த ஊர்ல அந்த பெண்ணையும் பார்த்தேன், அந்த குடும்பத்தையும் பார்த்து கேட்டேன், எவ்வளவுதான்ப்பா அவர் கடன் வாங்கினாரு அப்படின்னு கேட்டேன். मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि எவ்வளவு கடன் வாங்கினாருன்னு கேட்டேன். அமௌண்ட் वो कितना कर्ज लिए हैं? 6000 ரூபாய், ஜஸ்ட் 6000 rupees. सिर्फ 6000 रुपए कर्ज लिए हैं। கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஒரு மொஹல்லாவுல பசி பட்டினியில வட்டியில
திருமணமாகாம கடன் தொல்லையால எத்தனை பேர்கள் கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கும் போது இரக்கப்படாமல் கருணை காட்டாமல் சோமாலியாவை பற்றி பேசுகிறோம், பாலஸ்தீனத்தை பற்றி பேசுகிறோம், சிரியாவை பற்றி பேசுகிறோம், காஷ்மீரை பற்றி பேசுகிறோம், உத்தரப்பிரதேசத்தை பற்றி பேசுகிறோம், எந்தெந்த நாடுகளை பற்றியோ பேசுகிறோம். ஆனால் பள்ளிவாசலை சுற்றி வசிக்கக்கூடிய நம்முடைய ஏழை எளிய முஸ்லிம்களுடைய பசி, பட்டினி, நோய், நொடி, அவருடைய வறுமை, கடன், பிணி ஏன் பேச மாட்டேங்கிறோம்? सारी दुनिया के बारे में हम बात करते हैं और अफगानिस्तान, तुर्किस्तान या इस तरह जो भी जहां भी परेशानियां हो रही हैं, बाहर मुल्क के बारे में, सारे मुसलमानों के बारे में, सारी दुनिया के बारे में हम बात करें, और यहाँ एक गरीब औरत, एक गरीब लोग यहाँ मस्जिद में, मोहल्ले में इतनी परेशान कि अपनी परेशानी की वजह से अपनी इज्जत खो दे और अपनी सारी इज्जत को खो दे, ऐसी परेशानियों को छोड़कर ऐसी परेशान हाल को हमने उसका परेशान दरियाफ्त नहीं की, उसकी मदद नहीं की, उसकी सही तरीके से उसके साथ ताउन नहीं किया, उसकी परेशानी को दूर नहीं किया और सारी दुनिया के बारे में बात करने लगे और अपना मोहल्ला को हमने छोड़ दिया, अपने मोहल्ले के परेशान हाल लोगों को छोड़ दिया, तो ऐसे क्या हाल होगा इसके बाद? கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, முதலில் நம்முடைய முகல்லாவில் நம்முடைய மஸ்ஜிதை தலைமையாக கொண்டு, மஸ்ஜித் நிர்வாகிகளை தலைமையாக கொண்டு, அந்த பகுதியில் உள்ள மக்களை கஷ்டங்களை கண்டறிந்து அவர்களின் மீது இரக்கம் காட்டுவதற்காக, கருணை காட்டுவதற்காக இந்த மாநாட்டிலிருந்து நாம் புறப்பட்டு செல்வோமாக. அல்லாஹு தாலா நம் அனைவரையும் கபூல் செய்து கொள்வானாக. வாஹிரு தாவானா வல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். मोहतरम हजरात, इस वक्त हमारे लिए बहुत ज़रूरी और इंतहाई सख्त ज़रूरत इस बात की है कि हम मोहल्ले की मस्जिद वाले, मस्जिद के जिम्मेदारान ये फिक्र करें कि इस मजलिस में, इस मस्जिद से जुड़ने वाले इन मोहल्ले वालों में कौन कौन परेशान हाल हैं, उन परेशान हाल लोगों से मिलें और उनकी परेशानी की दरियाफ्त करें और घर घर पहुंचें और उनकी परेशानियों को दूर करें. और ये सबसे पहले हम यही इस कॉन्फ्रेंस का असल यही मकसद तमाम मस्जिद वालों से हम कहना चाहते हैं कि वो अपने मोहल्ले वालों की फिक्र करें. कि अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को ये फिक्र अता फरमाए. आमीन. व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.